a very warm welcome. This is Adil Yusuf Butt, reporting for the News Cradle in the first episode of the reportage. Today we're gonna discuss that who are these people who are protesting on Delhi border. Are they Pakistan backed? Are they China backed? Or are they Khalistan backed? कौन है ये लोग जो दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी है? क्या ये चाइना बैक्ड है या ये खालिस्तान बैक्ड है? आपको बताते कि ये कोई पाकिस्तानी बैक्ड नहीं है, न चाइना बैक्ड है, न खालिस्तान बैक्ड है. These people are being the 40 unions, the 40 farmer unions of the country are protesting on Delhi border. These people are protesting from past 20 days. Placards, pizzas, mattresses, and everything are being provided. Who are providing them? Are these Punjab-based actors helping the farmers to protest on? Why are they protesting? On what they are protesting? The Prime Minister from the Kutch today says that opposition is using the farmers for the political gains. Or may I quote his statement today? The Prime Minister said that opposition is using the farmers and shooting from their shoulders. It was a Kutch where Prime Minister Modi just alarmed the opposition for their gains on the farmers' protest. यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है. उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे. Meanwhile, every political group, apart from NDA, are backing the farmers. Why? What are these three legislations tabled by the Government of India, the NDA-led BJP, on 20th September without the division? Why the vice vote happened on this bill? What was the reason? Why wasn't opposition allowed to go for a division on these three legislation bills? Prime Minister Modi calling these bills historic bills. Then why are farmers protesting? What is the reason behind that? Why everyone in the NDA, for example, if you're taking an example of Shrimani Akali, the leader, Harsimrat Kaur Badal, she resigned from the Union Cabinet and NDA, and Shrimani Akali Dal is no more an ally of NDA. Why Hanuman Baniwal of RLP in Rajasthan is threatening the NDA that he might leave the NDA on the farmers' issue if the government doesn't agree on the amendments on these bills. कमेरे वर्ग को लूट कर उन पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहे हैं. पूरे हिंदुस्तान की जो तमाम सरकारी महकमे हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है. जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा, देश का हर वर्ग प्रभावित होगा और हमारी होंद को खतरा है. कारपोरेट जगत का हमारी जमीनों पे कब्जा होगा. Meanwhile, I should tell you that what is the reason? What are these bills? क्या होता था पहले, अब क्या होगा? जब ये कानून जो प्रधानमंत्री ने हिस्टोरिक बताए हैं, जिसको राष्ट्रपति ने हरी झंडी देकर पारित दस्तखत किए हैं, क्या होगा इन कानून से? पहले क्या होता था, अब क्या होगा? आपको बताते चले कि ये जो मॉडल है, इस बिल से पहले का जो मॉडल है 1965 वाला मॉडल है. अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा? पहली बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती थी जो कि मदद करती थी प्राइसिंग ऑक्शन में कि किस फसल का कितना प्राइस होगा, जिसको हम ऑक्शनिंग की तरफ से भी जान सकते हैं. ऑक्शनिंग वो पहले होता था. रेगुलेशन ऑफ मार्केट जो है रेगुलेटेड एपीएमसी होती थी. अब अगर ये पारित हो गया या जिसको राष्ट्रपति की हरी झंडी मिल चुकी है, इसके बाद फार्मर्स को जो है, किसानों को जो है अब कॉर्पोरेट के साथ डील करनी पड़ेगी. पहले क्या होता था, जो मिडलमैन होता था जिसको हम आड़त भी कहते हैं, वो पहले होता था, जो 1965 का मॉडल है, जो इस बिल से पहले का मॉडल है. अब क्या होगा? There will be no middleman now as no APMC market is there. अब APMC मार्केट तो है नहीं.
तो जो मिडल मैन होते थे कहीं ना कहीं आरोप जिनको हम कहते हैं अब इसमें नहीं होंगे। नंबर 2। नंबर 3 क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी बात आज सरकार कह रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अमेंड करके इसमें संशोधन करके बिल में वापस ले आएंगे। अगर हम जो आज के कानून है उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है एमएसपी और प्राइस डिस्कवरी को लेकर कि कितने प्राइस किस फसल की कितनी होगी, कैसे पता लगाओगे, इसमें बिल्कुल नहीं है। और सरकार की अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर हो या कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा है वो सरकार ये मानने के लिए तैयार हुई है कि हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्स को वापस नहीं ले सकते। नंबर 4, सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह उठ रहा है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? सरकार ने अपने इमरजेंसी पावर्स को यूज क्यों किया? सरकार को अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? एनकरेजमेंट ऑफ बिजनेस ड्यू टू वीकनेस ऑफ फार्मर्स। अगर हम देखें इस सरकार के, अगर इस बिल में जो है, इससे कॉर्पोरेट से कहीं ना कहीं बिजनेस उनका ग्रो करेगा, जो कि किसानों के लिए कमजोरी का सबब हो सकता है। अगर हम बात करें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, अगर किसान और कॉर्पोरेट के बीच में कोई मसला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके पावर्स ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं। और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कैसे करता है, किसान कैसे करता है, वो किसी को, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की जरूरत है। कॉर्पोरेट्स का कितना इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी पर है और फार्मर्स का कितना है, एवरीबडी नोज द फैक्ट वेरी वेल। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाई government is not bringing the solution to the whole problem? What is the reason behind? First of all, regulation of markets. आपको रेगुलेट करना पड़ेगा मार्केट्स को। किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, उसकी अश्योरेंस देनी पड़ेगी। नंबर 2। नंबर 3, डिजिटाइजेशन ऑफ मंडीज, जो कि काफी सालों की डिमांड है कि डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 4, वन नेशन वन एमएसपी। अगर आपने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, देन व्हाई नॉट वन नेशन वन एमएसपी? सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा है, कहीं सरकार के अंदरूनी सोर्सेज का यह भी मानना है कि कंसल्टेशन नहीं हुई, किसी के साथ बातचीत नहीं हुई। अगर बिल्स को लाने से पहले, लेजिस्लेशन को लाने से पहले सरकार किसी के साथ बात करती, अगर ये 40 संगठन है, पूरे देश के किसानों को कंसल्ट किया जाता, उनसे राय ली जाती और फिर प्रावधान होते, रिफॉर्म्स होने चाहिए। कोई भी शख्स, कोई भी किसान प्रो फार्मर जो है वो इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन रिफॉर्म्स हो जो कि फार्मर्स को मंजूर हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ कमिंग बैक टू द प्रोटेस्ट, व्हाई दे आर बायकॉटिंग दिस? What is the reason? Because farmers are being labeled like they are anti-nationals, they are Khalistani backed. What is the reason? In the latest episode, Rahul Gandhi tweeted, quoting his tweet, he said, dissenting students are anti-nationals. कि जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, जो अगर एग्जाम्स के दौरान, उनको आप देश विरोधी मानते हैं। Concerned citizens are urban axles. Migrant laborers are COVID carriers. Rape victims are nobody. Protesting farmers are Khalistani. And crony capitalists are friends. क्यों पंजाब के हर किसी क्षेत्र के लोग, वो सिंगिंग हो, कोई भी कला के लोग हो, उन्होंने इन फार्मर्स को क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं? Why are they supporting the farmers? What is the reason? Why? Because these farm laws are not helping the farmers. They're taking away the freedom. They're not helping, assuring the MSP for anything they will harvest, they will crop, they will so on. 6 round of talks, जो कि छठे दौर की मुलाकात है, वो सरकार और किसानों के बीच नहीं हो सकी, क्योंकि सरकार इन काले, जो किसान कह रहे हैं काले कानून, जो these 3 farm bills, government is not ready to take them back. And now the farmer union of the country, 40 farmer union of this country have rejected to talk with the government. क्यों? अगर हम इसके प्राचीन काल में जाए कि हुआ क्या था,
मॉनसून सत्र चल रहा था, राज्यसभा में बिल को पारित होना था। ऑपोजिशन की मांग थी कि इसको डिवीजन के बीच से करें, जब डिवीजन होगा तो हम तब बिल को पारित करेंगे, लेकिन सरकार इस पर अड़क गई। सरकार ने कहा कि वॉइस वोट के जरिए से ही जो है हम बिल को पारित कराएंगे। इस शोर शराबे के बीच में डेरेक ओब्रायन, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने रूल बुक को फाड़ दिया था। 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर लिया गया था। शीतकालीन सत्र चल रहा था और वो 8 एमपीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थे, टीएमसी के थे और आम आदमी पार्टी के थे। कुछ दिन ये ड्रामा संसद के भीतर चला, उसके बाद बाहर चला, हंगर स्ट्राइक हुई। और यहां पर मुझे चंपारण का वाक्य याद आ रहा है। महात्मा गांधी ने 1917 में जो चंपारण आंदोलन किया था, जहां किसानों की सहानुभूति के लिए गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा। क्या हम चंपारण के दौर में आ रहे हैं? क्या ये चंपारण जैसे हालात वापस आ रहे हैं? यह हमें सोचना पड़ेगा। आज के हालात को अगर देखें तो कबीर काला, जो कि पैरोडिकल सॉन्ग्स गाते हैं, उनको एनआईए गिरफ्तार करती हैं कि आपने पैरोडिकल सॉन्ग्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। उसमें का विजिलेंटिज्म है और कहीं ऐसे आरोप एनआईए की तरफ से लगाए गए हैं। फिर ये किसान गोदी मीडिया का बायकॉट क्यों कर रहे हैं? फिर दिलजीत दोसांझ जैसे और कई कलाकार पंजाब के इन फार्मर्स का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इस देश का छोड़िए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, वॉशिंगटन, पूरी दुनिया में ऐसा शोर शराबा हो रहा है कि हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर क्यों हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पैट्रन अन्ना हजारे ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि अगर सरकार इन 3 बिल्स को वापस नहीं लेती है तो वो अनशन करेंगे। एंड द होल कंट्री, across the board, across the political spectrum, from everywhere, it's now looking that government is on back foot. The farmers sitting on Delhi border in their 20th day are protesting hard. They want government to repeal these laws as early as possible. Now the ball is in the government's court, whether they're gonna take them back or they're gonna bring amendments in the law. This is our first report on the reportage. I hope you all like it and you all give our love to this news channel. Share, like and subscribe and keep loving us. Goodbye. Thank you.